السلام علیکم، پروگرام عکس برعکس کے ساتھ میں ہوں شائستہ شہزاد۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے ملاقات کی ہے، جس میں وزیر اعظم نے صوبے میں امن و امان کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت کا تعاون ناگزیر قرار دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی شہباز شریف سے ہوئی اس ملاقات میں مشیر خزانہ کے پی مزمل اسلم، وزیر داخلہ محسن نقوی، وفاقی وزیر امیر مقام اور رانا ثنا بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ کے پی کی ملاقات کا وزیر اعظم شہباز شریف کی اس ملاقات کا اعلامیہ جاری کیا گیا، جس کے مطابق وزیر اعظم کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت انسداد دہشت گردی کے لیے صوبائی اداروں کو مضبوط کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ صوبائی حکومت با اختیار ہے۔ کے پی حکومت قیام امن کے لیے، عوامی فلاح کے لیے اپنی تمام آئینی ذمہ داریوں کو نبھائے اور عوام کی صحت اور تعلیم کے لیے اقدامات کرے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ قیام امن کے لیے صوبائی حکومت کی کاوشیں مزید بڑھانے کی ہمیں ضرورت ہے، اور خیبر پختونخوا وفاق کی ایک اہم اکائی بھی ہے۔ صوبے کے عوام کی خوشحالی کے لیے وفاقی حکومت بھرپور کوششیں جاری رکھے گی۔ وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا میں ترقیاتی منصوبوں، تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے تعاون کی بھی یقین دہانی کروائی، اور کہا کہ وفاقی حکومت تمام صوبوں کو ساتھ لے کر چلنے اور یکساں ترقی کے ویژن پر بے عمل پیرا ہے۔ مشاورت اور اشتراک سے قومی یکجہتی اور خوشحالی کے اہداف حاصل کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ہونے والی ملاقات میں بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ان کی بہنوں کی ملاقات سے متعلق کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع کے 26 ارب روپے رکے ہوئے ہیں، اور وزیر اعظم نے قبائلی اضلاع کے رکے ہوئے 26 ارب روپوں کو بھی جاری کرنے کی ہدایت کی ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں خطاب میں کہا کہ بلوچستان میں بھارتی حمایت یافتہ پراکسیز سرگرم ہیں جو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ بلوچستان کے جغرافیے کی وجہ سے وہاں پر بڑے پیمانے پر فوجی اہلکاروں کی تعیناتی کی ہمیں ضرورت ہے، اور کہا کہ حکومت اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات بھی کر رہی ہے تاکہ دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کو مالی معاونت یہاں سے فراہم نہ کی جا سکے۔ افغان سرزمین پر موجود عناصر بھی پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں تعاون فراہم کر رہے ہیں، اور اس نیکسس کو بھی ہمیں توڑنا ہوگا۔ اس کے خلاف ہمیں مزید کارروائیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ساری صورتحال پر آج پروگرام میں ہم ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسامہ حمزہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم سر۔ جی ویلکم السلام۔ بہت شکریہ اسامہ شرکت کرنے کے لیے شو میں۔ آپ نے دیکھا کہ ہم جن کارروائیوں کے حوالے سے پہلے گفتگو کرتے رہے، اور پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی رہی کہ ابھی ان دہشت گردوں کے حوالے سے اس طرح سے ہمیں کارروائیاں نہیں کرنی، اس طرح سے آپریشنز ہمیں نہیں کرنے، لیکن وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ کے پی سے ہونے والی اس ملاقات کو پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے دیکھتی ہے، اور آنے والے وقت میں جو تعاون کے حوالے سے وہ گفتگو کر رہے ہیں، رکے ہوئے فنڈز کے حوالے سے جو انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے، تو آپ اس کو ایک پازیٹیو جسچر، ایک پازیٹیو میٹنگ کنسیڈر کریں گے، یا اسٹل آپ کے یہی تھاٹس ہیں اور آپ اسی طرح سے سوچتے ہیں کہ نہیں، خیبر پختونخوا کے ساتھ جو رویہ ہے وفاق کا وہ ڈیفرنٹ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ بات یہ ہے جی، یہ جو آج ملاقات ہوئی ہے یہ تو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی۔ ہمارے جو کے پی کے سی ایم ہیں سہیل آفریدی، انہوں نے تو کہا تھا جب شہباز شریف صاحب نے انہیں ملاقات کی دعوت دی اور ان سے کوآپریشن کا کہا، انہوں نے کہا مجھے اپنے لیڈر سے ملنے دیں۔ پھر یہ پچھلے جس عرصے سے سہیل آفریدی اپنے عہدے پہ متمکن ہیں، اور آج تک آپ دیکھیں کتنے ماہ ہو گئے، اور کتنی بار سہیل آفریدی خود آتے رہے، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے، عدالتوں کے احکامات کے باوجود کوئی ملاقات نہیں۔ یہ ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے۔ ہماری پارٹی اپنے لیڈر سے ملنے سے کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑتی۔ وہ عمران خان وفاق کی علامت ایک شخصیت ہے، وہ واحد شخص ہے، وہ واحد لیڈر ہے جس کی چاروں صوبوں میں جی بی آزاد کشمیر میں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن، لوگوں کو دلوں میں بستا ہے۔ ٹھیک ہے، آج اگر وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر جن امور کے بارے میں
सुहेल अफरीदी भाई ने शहबाज शरीफ को कहा है, अगर शहबाज शरीफ साहब वाकई पाटा और पाटा के जो रुके हुए उनके वाजबात हैं वो जी जी। देते हैं और हमारा जो केपीके का शेयर बनता है, इन हालात में जब पूरा सूबा उसका आधा हिस्सा ज्यादातर जो इस वक्त दहशतगर्दी की आग में जल रहा है, हमारे उधर के जनूबी अजला है, हमारा नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, ये मैटरिंग पार्टी है, ये बात से बात आगे निकलती है कि बहुत पहले नीचे ये थी। इस इख्तियारात का तवाज़ुन अगर आप चेक करें, जिनके पास हो तो उन्हीं को देना पड़ता है ना जी। हम तो एक सूबे के अंदर हमारी वहां पे मजबूत गवर्नमेंट है और ठीक है। हुकूमत ने आजमा के देख लिया। जब खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर स्टेप डाउन हो, नया वजीर आला आए, तो कितने हरबे आजमाए गए, हमारी मखसूस नशिस्तें हमसे छीनी गई। ईच एंड एवरीथिंग आप अंदाजा करें कि जिन चीजों के बारे में अगर एक पार्टी की वहां पे 2 सीटें, उसको खवातीन की 4 सीटें दे दी गई। ये इनके बावजूद हमारा वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह हम एक हकीकत के तौर पे बैठे हैं। खान का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। खान पाकिस्तान के लिए अपने वो जेल की काल कोठरी में बैठा पाकिस्तान की बेहतरी की बात करता है। हम तौबा नऊज बिल्लाह, हम अपनी पाक धरती के बारे में पूरा सोच ही नहीं सकते। हमारी अफवाज हैं, अफवाज अपना काम सरहदों पे कर रही हैं। अभी हमने इंडिया को तेरनी का नाच नचाया, लेकिन मसला यह है कि कौमी उमूर के अंदर अगर सियासतदानों को काम ना करने दिया जाए तो फिर इसका नतीजे में देख लें। ये पिछले एतवार में जो लोग कहते थे कि ईंट से ईंट बुझा देंगे, वो किस ओहदे पे बैठे हैं। जो लोग कहते थे कि हमारी फौज बार बार हमें फतह करती है, हमने ये किया, इन्होंने ये किया, कोई जंग नहीं जीती, ये असेंबली के फ्लोर पे तकरीरें होती रही। या नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, लेकिन इन सब चीजों को भूल के एक मुसल्लमा हकीकत है इमरान खान। जी जी। इमरान खान के ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी की चीज है कि मैंने अपने इस नजरिए को कि हमने पाकिस्तान को एक मुत्तहद और मुस्तहकम मुस्तकबिल भी देना है और पाकिस्तान को दुनिया की अजीम अक़वाम के अंदर लेके जाना है, ये इंशाल्लाह ये होके रहेगा। लेकिन उसके लिए हमें सेल्फलेस होके, हमें अपनी जाती मुफादात को छोड़ के और अपने ये सारे मामलात को एक डिसिप्लिन में लाना होगा। इस वक्त बहुत सूरत हाल दिगरगू है। आप देखें हमारा इंसाफ का निजाम बिल्कुल तलपट हो चुका है, कोई लोग इसके ऊपर बिलीव करने के लिए तैयार नहीं। आप इंडेक्स को, वर्ल्ड इंडेक्स में देखें तो हमारा अदालती निजाम दुनिया के आखिरी 2-3 मुल्कों से ऊपर है कहीं। सही। अगर ये चलता रहा तो इंशाल्लाह गोल्ड मेडल तो हमारा हुआ। तालीम में, सेहत में हम अपने हमसाया मुल्कों से कहीं पीछे हैं। अच्छा। बार बार के तजर्बात ने हमें कोई सीखने का मौका नहीं दिया। हम बार बार गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं और हुक्मरान समझते हैं कि सब चैन में है। आप जाके देखें सिंध के गरीब हारी पे क्या गुजर रही है, पंजाब के गरीब किसान का जीना दूभर हो गया है, उसको अपनी जान के पड़े हुए हैं। आप केपीके में देखें, ये हमने बॉर्डर बंद किया है, तो बॉर्डर बंद करने से अब वो जो तालिबान है वो कहते हैं हमें, हम ठीक है बंद रहे। मसला हमारा है, हम अगर गैरों की लड़ेंगे अपने हमसाए मुसलमान भाई से, तो वो तो फिर एक, आप जानते हैं कि इस आलम में जब गुस्सा हो, जब अपने एक आप छोटे 1 साल के बच्चे को थप्पड़ मार के टॉफी भी देंगे, वो टॉफी नहीं लेता। सही है। बैठना होगा, करना होगा। चलिए अब डायलॉग तो से आगे बात चलती। उसामा साहब लेट्स टॉक अबाउट कि हम पहले भी बैठे थे, पहले भी लिसन प्लीज, जारी रहना चाहिए। क्वेश्चन ले लेना, गवर्नमेंट को लेने होंगे। क्वेश्चन ले लेना सर। जिस अंदाज से इन्होंने हुकूमत चलाई है, फिस्तायत के अंदाज से वो इन्होंने चलाई है। अब सीबीएम्स लेने होंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लेने होंगे, तो सरकारी पार्टी को और उनकी हलीफ जमातों को। ठीक है। अच्छा उसामा साहब, मेरा सवाल ये है कि आपने बोला कि अच्छी बात है आप बैठे हैं, लेकिन थोड़ा देर से बैठे हैं, बेहतर होता कि पहले बैठ जाते। निगोसिएशन के लिए जो मुज़ाकरात का फर्स्ट प्रोसेस था, जो पहला दौर था, उसके लिए भी खुद से
गवर्नमेंट ने ही आकर इनिशिएट करने की उसको कोशिश की थी, फिर दूसरी बार भी की, अब अगर वो बैठ भी गए हैं तो बेहतर नहीं है कि अमन व अमान जो वो आपसे मांग रहे हैं कि उसके ऊपर आप हमसे बैठें, उस पर आप इफाक से ताउन करें और उसको आप अपनी प्रायोरिटी बनाएं। आपकी अहम ज़रूरत भी वही होना चाहिए, क्योंकि अगर सिक्योरिटी होगी, अगर अमन व अमान होगा तो बाकी दूसरी चीज़ों को काउंटर करना, उनको बेहतर करना, उन पर काम करना ज़्यादा आसान होगा। तो उस पर खैबर पख्तूनख्वा क्यों इतना टाइम ले रहा है? क्या वजह है कि वहां पर कोई रुकावट आ रही है अंडरस्टैंडिंग में? ऐसा बात ही है, हमारे आपने अभी रिसेंटली तीरा के अंदर डिस्प्लेसमेंट देखी है। लोगों के पीके के लोगों के दिल दुखे हुए हैं। ये इससे पहले जो एक 9/11 के बाद हमारे ऊपर जो जंग मुसल्लत हुई थी, इसमें 45 लाख इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स थे, जिन लोगों के अपने घरों को छोड़ा था और टेंटों के अंदर और रिश्तेदारों के पास और दूर दूर हिजरतें की थी। वो वापस आए तो उनका सब कुछ लूटा पटा था। वो लोग उस चीज से खौफजदा हैं। अब देखें, अब तीरा की वादी के अंदर जिस तरह से लोगों को डिस्प्लेस किया गया, ऊपर से बर्फबारी है। आप बे औलाद हैं, हम जानते हैं कि क्या दुख होते हैं। हिजरत के फजाइल बहुत हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आपके ईमान को खतरा है तो हिजरत कर जाएं, अगर जान को खतरा है तो कर दें, रिज़्क़ की कमी का मामला है तो हिजरत करें। इसके समरात हैं, अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी बिशारतें दी हैं इसकी। लेकिन जिस तरह से ये डिस्प्लेस्ड हो गए हैं लोग, ये अपने उन 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 हमारे भाई जो हमें कहते हैं यहाँ से मूव कर दें। देखें, टारगेटेड ऑपरेशन को पीटीआई कभी नहीं कहती, हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है कभी नहीं कहती कि आप ना करें। लेकिन अगर मास स्केल अगर आप इस तरह के काम करेंगे, उसमें नुकसान मिलियंस का होता है। उसामा साहब, वो जो मुट्ठी भर है ना। उसामा साहब एक सेकंड दीजिएगा, सेनेटर बहरामन तंगी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उनको हम वेलकम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। जी कैसे सर, आप खैरियत से? आवाज आ रही है सर आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये जो अभी मुलाकात हुई है, इस हवाले से हमें डिस्कशन करना है। अच्छी बात है, मुलाकात हुई है, होनी चाहिए, पुरअफ़ज़ा भी है और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, जो सुहेल आफरीदी साहब से मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है, लेकिन आपको नहीं लगता कि देर कर दी है? क्योंकि हमारे पीटीआई वाले भाई भी ये कह रहे हैं कि अगर ये मुलाकात पहले हो जाती तो ज़्यादा अच्छा होता, फिर उतनी इंटेंसिटी पे मामलात नहीं जाते। जहाँ पर नफरतें गई, जहाँ पर मामलात गए इतनी ज़्यादा एजुटेशन की तरफ, तो मुफाहमत होती अगर तो अच्छा होता, और अगर ये पहले मुलाकात हो जाती तो बहुत अच्छा होता। आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर मेरे भाई अभी कहते हैं कि ये पहले होनी चाहिए जी, तो इनके इत्तला के लिए अर्ज है कि क्या जब खैबर पख्तूनख्वा के नाकाम तरीन वज़ीर आला और सियासी नाबालिग वज़ीर आला ने जब ओथ लिया तो मेरे प्राइम मिनिस्टर ने मुबारकबाद के लिए टेलीफोन भी किया, और मेरे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनको दावत दी कि आइए हम सब मिलके खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी से पाक करें। खैबर पख्तूनख्वा में जो आज 80% दहशतगर्दी बढ़ गई है, उनको खत्म करें। लेकिन ये चीफ मिनिस्टर ने इनकार किया, और जब इसके अपोजिशन लीडर महमूद खान चकज़ई ने मुज़ाकरात की बात की तो इमरान की बहन ने कहा कि जो मुज़ाकरात करते हैं वो इमरान के साथी नहीं है। हम तो मुज़ाकरात पे यकीन इसलिए रखते हैं कि हम जमहूरी लोग हैं, सियासी लोग हैं, और सियासत पे यकीन रखते हैं, और सियासत और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बैठना, अपोजिशन की स्टेटस को तस्लीम करना, उनको एंगेज रखना और मसाइल को हल करने के लिए अपोजिशन को साथ ले जाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मुजरिम कैदी 804 प्राइम मिनिस्टर थे, नो डाउट कि ही वाज अ सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, लेकिन उसने उस वक्त भी मुज़ाकरात नहीं किए थे हमसे। जब हम उनको मुज़ाकरात के लिए हाथ बढ़ाते थे, वो दूर भागते थे और कहते कि ये मुझसे इनारो मांग रहे। लेकिन आज अगर हम हुकूमत में हैं और हम इनको मुज़ाकरात की दावत देते हैं फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, फॉर द सेक ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, फॉर द सेक ऑफ टेररिज्म, तो ये फिर भी हमसे बैठते नहीं है। वो कुल्ला कैटेगोरिकली कहते हैं कि लोगों ने हमें वोट इसलिए नहीं दिया कि हम खिदमत करें, हम दहशतगर्दी खत्म करें, बल्कि लोगों ने हमें इसलिए वोट दिया है कि हम मुजरिम कैदी 804 की रिहाई करें। तो मैं समझता हूं कि
नाहल चीफ मिनिस्टर को ये एहसास हुआ कि मुझे मिलना है, बहुत अच्छी बात है, नेक शुगून है सूबे के लिए, इसलिए कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन, अरबों रुपए की करप्शन है। तिरा के अपराध को बिहार और मददगार छोड़ करके स्ट्रीट मूवमेंट के लिए अरबों रुपए वो अवाम के हड़प कर रहे हैं। किसने छोड़ा उनको बेयारो मददगार? वो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं, आप उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो एक्चुअली छोड़ा किसने उनको बेयारो मददगार? किसने डिस्प्लेस किया? देखिए इल्जाम की बात नहीं है, हकीकत की बात है। क्या जब खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी आती है तो तिरा के लोग, कुछ फैमिलीज वॉलंटियरली आते हैं पेशावर की तरफ, बाड़े की तरफ, और वो ये सर्दियों के मौसम गुजार करके वापस चले जाते हैं। लेकिन जब इन लोगों ने एक नोटिफिकेशन किया और IBO को जो इंटेलिजेंस बेस और जो ऑपरेशन है वो तो करेंगे हम, जहां पर भी दहशतगर्दी होगी, जहां पर भी मेरे जवान को शहीद करेंगे, जहां पर मेरे जनरल माजिद को शहीद करेंगे, वहां पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन करते हैं और करेंगे। तो फिर जिम्मेदारी किसकी थी सर? उसामा साहब आपकी जिम्मेदारी थी, आपने नहीं निभाई। देखिए मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये 18 अमेंडमेंट के बाद लैंड ऑर्डर सिचुएशन को हैंडल करना ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी बनती है। मेंबर से पूछ रही हूँ ना सर, उसामा हमजा साहब PTA से हमारे साथ है, मेरा सवाल उन्हीं से है कि आप लोग की जिम्मेदारी थी। सेनेटर बहरामन तंगी साहब फरमा रहे हैं आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा की, ऊपर से आप शिकवा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। मुझे हैरत होती है कि सेनेटर बहरामन तंगी साहब ये फरमाते थे, पिछले भी दिनों एक नशिस्त में इनसे सामने हुआ था, मैं ये कहते थे जी मैं पुराना सियासी वर्ग हूँ, कई मरतबा असम्बली में आया हूँ। तो बहरामन साहब प्लीज देखें, ये अंदाज़े तखातब ठीक नहीं है। आप जिनको बदतमीज बोलते हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप PTA वालों को कहते हैं इनको तमीज नहीं है, मैं आपको याद दिलाता हूँ हुजूर, आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। देखें भाईजान, आप बड़े जिम्मेदार होंगे, जब किसी को दीवार के साथ लगाया जाए तो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? हमारे सोहेल अफरीदी भाई ने सिर्फ यही कहा था, हुजूर हम आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, डायलॉग करते हैं, बैठते हैं, लेकिन मरकज सूबे इकाइयां हैं, ये फेडरेशन का हिस्सा है, KPK वाले किसी खला से नहीं आए। देखें वी आर नॉट एलियंस, आप हमारे से खलाई मखलूक वाला सलूक ना करें। सोहेल अफरीदी ने यही कहा, जनाब हमारे हकूक दे, मुझे जरा अपने लीडर से तो मिलने दें। अल्लाह के फजल से मेरा लीडर एक टेररिस्ट नहीं है, वो एक बहादुर और दलेर वो एक इंसान है। आप अगर समझते हैं कि उसको इस तरह से उसे मिला के पार्टी लाइन हमने अपने लीडर से लेनी है, एक बंदे को एक प्राइम मिनिस्टर को अगर इतना इख्तियार नहीं है, ये सुनने में आ रहा है कि कल को मुलाकात होगी, खुदा करे हो, बर्फ पिघलेगी, बातचीत चलेगी, लेकिन उसमें नुकसान किसका होगा? मुल्क दुश्मनों का नुकसान होगा। हमारी फेडरेशन हमारे सूबों का आपस में एक मुआहिदा है, हमने सबको साथ लेके चलना है, सूबों को उनके हक देने हैं। क्योंकि साहब आप सेनेट में विराजमान हैं, मैं जानता हूं, मेरे वालिद भी आपके साथ उधर सेनेटर रहे हैं, नून लीग से था उनका ताल्लुक, लेकिन ये यकीन माने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सूबों को जो इख्तियारात तफवीज करता है, वी आर विद इन द गिवन पैरामीटर, उनको हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। हमारा सूबा आपकी तरफ, वफाक की तरफ से हमारे जो ड्यूज हैं, जो पन बिजली के हैं, जो हमने पाटा और पाटा के जो लोगों को देने थे, वो अगर आप शहबाज शरीफ ने कहा कि देंगे तो वेल एंड गुड, चले आगे बढ़े, बात चलेगी। महमूद अचकजई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब, हमारे सेनेटर जो हमारे चेयरमैन हैं पार्टी के, वो चल रही है बात, अल्लाह करे चले, इससे मुल्क दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम होंगे। हमने टेररिस्ट को काउंटर करके कोने में डालना है, और पाकिस्तान की अफवाज जो इस सारे मामलात को हैंडल कर रही है, इंशाल्लाह उनको तकवीयत मिलेगी। अगर हम अवाम के खिलाफ लड़ेंगे तो हमने तो जमीन तो नहीं खेलनी चाहिए, हमें तो अवाम का तहफ़्फ़ुज़ भी दरकार है साथ। ये देखें, इस तरह की सोच
کہ ہم زمین کلیئر کرا لیں. سر اگر وہاں کے مقیم پریشان ہیں تو ریاست کے سینے میں تو ماں کا دل ہوتا ہے. آپ کس طرح سے کہیں گے کہ جناب ملک میں امن چین ہے جب وہاں پہ ایک خطہ آگ میں جل رہا ہے؟ یہ ایک جستے واحد کی طرح سے ہیں ہم. اگر پیر میں درد ہوتا ہے یا سوئی چبھتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء کو اس کا احساس ہوتا ہے. کے پی کے، سندھ، بلوچستان، پنجاب، جی بی، آزاد کشمیر، یہ سارے ہم ایک جستے واحد کی طرح سے ہیں اور ہم سب کو ایک سوچ نے، ایک نظریے نے اکٹھا کیا ہوا ہے. اور عمران خان فیڈریشن کی علامت ہیں اور الحمدللہ یہ آپ بھی جانتے ہیں 3 دفعہ کے پی کے اندر جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف جیتی. میں آپ لوگوں کی نجی مجالس دیکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے 50 سال میں عمران خان کی پارٹی جا سکتی تھی. لوگوں کے خون میں بس گیا ہے. یہ ہماری زی جنریشن، ہماری الفا جنریشن، یہ آپ کے پرانے داؤ وہ نہیں جانتی، وہ آپ کو پھونک مار کے اڑا دیتی ہے. کس دنیا میں رہتے ہیں؟ حقیقت کو مانیں، جو حقیقت ہے اس کو سامنے دیکھیں. چمگادڑوں کی طرح سے الٹا لڑنے سے سورج کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. دن طلوع ہوگا انشاءاللہ، اور طلوع ہو رہا ہے. اور اس وقت آپ کو ریالٹی کو فیس کریں اور سامنے دیکھیں. ہم ایک حقیقت ہیں، ہم ایک نظریے کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے سینیٹر صاحب، آپ نے گفتگو سنی. اب بات یہ ہے کہ کس طرح سے حکمت عملی کو آگے لے کر چلنا ہے. کیا خیبر پختونخوا گورنمنٹ اس میں تعاون کرے گی اس ملاقات کے بعد؟ کیا ایسا پازیٹیو سائن سہیل آفریدی صاحب کی طرف سے نظر آیا ہے؟ کیونکہ الٹیمیٹلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک صوبے کو، ایک جگہ کے لوگوں کو تکلیف ہے تو پورا ملک تکلیف میں ہے، لیکن پھر اس کا حل بھی تو انہی لوگوں نے مل کے نکالنا ہے. تو کیا مل کے بیٹھیں گے یہ لوگ دوبارہ سے اس معاملے کے اوپر اسپیسیفکلی؟ دیکھیے، میں نے پی ٹی آئی کی بھائی کی باتوں کو بالکل 1-2 لفظ اس نے بدتمیزی کا کوئی لفظ استعمال کیا میرے بارے میں، اور پھر سہیل آفریدی کے بارے میں بات کی. تو ان 2 باتوں کو میں نے سنا، لیکن میں ابھی اس کے جواب دوں گا اور پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو اپنے صوبے کی چیف منسٹر سہیل آفریدی کے کردار کے بارے میں بتاؤں. تو کیا یہ پوری دنیا آپ جیسے لوگ، آپ کی نظر سیاست پہ ہے، کیا اس نے سو مینی ٹائم یہ نہیں کہا تھا کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ اس لیے نہیں دیا ہے کہ ہم عوام کی خدمت کریں، ہم صحت اور تعلیم پہ خرچ کریں، ہم دہشت گردی کو ختم کریں، ہم ٹی ٹی پی کو دہشت گرد تنظیم کہیں، بلکہ ہمیں ووٹ دیا ہے صرف مجرم قیدی 804 کی رہائی کے لیے. یہ ایک دفعہ نہیں، اس دن کیا اسلام آباد میں نہیں کہا تھا ایک صحابی کے جواب میں کہ آپ مجھ سے یہ سوال نہ کریں کہ تیرا کے لوگوں کو بیارہ مددگار کیوں چھوڑا ہے، آپ مجھ سے صرف مجرم قیدی 804 کی رہائی کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں. یہ ریکارڈ پہ ہے. اور دوسری میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج 4 ارب روپے ریلیز کرنے کے بعد خیبر پختونخوا کی، باڑہ کی اور تیرا کی عوام، جنرل ماسز جو افیکٹیز ہے، وہ مانگتے ہیں حساب چیف منسٹر سے کہ 4 ارب روپے خرچ کی، آپ ہمیں حساب دے دیں. ابھی وہ باتیں حساب دینے سے، جہاں تک آپ نے کہا تھا کہ آج کی میٹنگ کے بعد ان حالات کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ وی آر ڈیموکریٹ، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم اپوزیشن کو سٹیٹس دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن کیا آج اپوزیشن لیڈر اگر وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، اگر وہ بیٹھنے کی بات کرتے ہیں، تو یہ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی ایم این اے اس کے لیے تیار ہے؟ کیا عمران کی بہنیں اس کے لیے تیار ہے؟ یا یہاں پہ آج اگر خیبر پختونخوا میں چیف منسٹر ہے، وہ اس بات کو نہیں دہرائیں گے کہ جو انڈیا سے طالبان رجیم سے آپ ثبوت مانگتے ہیں، تو ثبوت کیا ہے، ثبوت دے دے. تو یہ تو ترجمان بنے ہیں طالبان رجیم کا. دوسرا، اس کا جو اسپوکس پرسن ہے وہ کل کے کہہ رہے کہ ٹی ٹی پی دہشت گرد تنظیم نہیں ہے. تو یہ مجھے بتائیں کہ آج 13 سالوں میں دہشت گردی 80% بڑھ گئی ہے. کیوں بڑھ گئی ہے؟ اس لیے کہ یہ پاکستان کے ساتھ، سیکورٹی فورسز کے ساتھ اور مرکزی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج میٹنگ کے بعد اگر ان کو ہوش آ گیا، اگر ان کو سیاست سمجھ آ گئی، اگر ان کو اپنے مینڈیٹ کا احترام آ گیا، تو ہوش ہونا چاہیے کہ یہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ بیٹھے، یہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہاتھ بڑھائیں، یہ مرکزی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے صوبے کی بات کرے، صوبے کے حقوق کی بات کرے.
आज अगर ये सूबे किसी दहशतगर्दी के खात्मे की बात करते हैं, टीटीपी तंजीम को दहशतगर्द जमात कहते हैं, अगर ये कहते हैं कि अफगानिस्तान की जमीन पर खैबर पुख्तनख्वा और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता है, तो जितनी भी पार्टी से उनका साथ देने के लिए तैयार है। मैं सबसे पहले साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब एक सूबाई चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि किस चीज के सबूत मांगते हैं, तो मैं अपने भाई को बताता हूँ सबूत ये है कि जहां पर भी दहशतगर्द खुदकश हमला होता है और जो मुर्दार होते हैं वो अफगानी होते हैं, जहां पर क्रिमिनल लोग पकड़ते हैं वो अफगानी होते हैं। ये आप यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट निकाल के देख ले, आप सूबाई हुकूमत की रिपोर्ट निकाल के देख ले, आप मरकजी हुकूमत की रिपोर्ट निकाल के देख ले, उनसे आपको पता चलेगा कि अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। आज तालिबान रिजीम हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, हमारी टेररिज्म में इन्वॉल्व है, वो इंडिया के साथ गठजोड़ करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप अगर इसके लिए तैयार हैं तो फिर मुज़ाकरात भी होंगे, फिर एक साथ भी चलेंगे। लेकिन अगर आप अफगानियों को दहशतगर्द नहीं मानते हैं, अगर आप अफगानिस्तान की जमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हो और आप इसके मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर मुज़ाकरात होंगे। इससे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पर, सिक्योरिटी फोर्सेस पर और पाक फौज की बेइज्जती पर कंप्रोमाइज करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। हमारे लिए जमीन जो है, मिट्टी है, ये माँ का दर्जा रखती है। हम अपने मुल्क की हिफाजत जानते हैं। हम पाक फौज के शोहदा को इज्जत और एहतराम के अल्फाज याद करते हैं। हम पाक फौज शोहदा को गाली नहीं देते हैं। हम पाक फौज को तकसीम करने की नाकाम कोशिश नहीं करते हैं। हम पाक फौज के अमलाक को जलाकर राख करने की कोशिश नहीं करते हैं। ये मुल्क हमारा है। बात थोड़ी सी आगे बढ़ी है, क्योंकि मेरा ये सवाल है उसामा साहब से। उसामा साहब, अब बात हो रही है टीटीपी के दहशतगर्दों की, क्या वो दहशतगर्द नहीं है? क्या सीएम साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर जो मुज़ाकरात के लिए अपॉइंटेड हैं, क्या उनके साथ खड़े नहीं होंगे अगर उनकी मुलाकात नहीं होती? और इस बात में कोई डाउट नहीं है अफगानियों के हवाले से। वजीर दाखिला साहब खुद कह रहे हैं, वजीर दिफा साहब खुद कह रहे हैं कि हमारे साथ बलोचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज हैं, और ना ये आज नहीं है, इससे पहले भी है। और ये बात टीटीपी को दहशतगर्द तंजीम कही, ये टीटीपी को दहशतगर्द तंजीम कही, मैं इसका साथ हूँ, मैं इसका साथ हूँ। ठीक है, उसामा साहब मानते हैं ना, अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सेनेटर साहब, मुझे लगता है कोई सेनेटर साहब का कोई ब्लड प्रेशर हाई है। ओ भाईजान, ठंडा पानी पिए। आपको किसने कह दिया कि हम फौज को डिवाइड करना चाहते हैं? अल्लाह का लाख सेक्शंस आपस में लड़ रहे हैं, लाखों लोग जंग खत्म होने का नाम नहीं लेते। शुक्र है कि हमारी फौज के अंदर यूनिटी ऑफ डिसिप्लिन है, हम तो शुक्र करते हैं। तो आप फायदा उठा रहे हैं, आपका तो केपी के मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्या बातें करते हैं तुम भी साहब? आप अगर सेनेट में बैठे हैं तो प्लीज को ब्लड प्रेशर को धीमा करें। खुद ही फतवे देते जा रहे हैं, खुद ही सवाल का जवाब दे दें। कौन मुल्क को दुश्मनों का साथ देता है? हम लानत देते हैं मुल्क दुश्मनी करने वालों पे और उनका साथ देने वालों पे। क्या अपना जवाब नहीं दे सकते हैं आप सोचते क्या हैं? देखिए, एक खुदा के लिए ठंडे अगर ये आगे ऐसे नहीं चलेंगे तो हकीकी नुमाइंदे असेंबलियों के अंदर बैठेंगे। ये जो 17 सीटों वाली गवर्नमेंट है, 17 सीटें वाली गवर्नमेंट आपके आके बैठे हैं, जो हम अगर बात करते हैं जवाब दे दो। अच्छा, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी साहब का सवाल है ना साहब, वो बड़ा शॉर्ट है। वो ये है कि आप टीटीपी को अफगानी जिस तरह से दहशतगर्दी कर रहे हैं, मानते हैं उनको दहशतगर्द या नहीं मानते कि वो कर रहे हैं, पाकिस्तान पर हमला हो रहे हैं, यहाँ पर ये सारी कार्रवाइयां जो गैर कानूनी तंजीम अगर टीटीपी पाकिस्तान कोई भी दहशतगर्दी में मुलव्वस है, वो एंटी पाकिस्तान है। अफवाज पाकिस्तान को, शहरियों को मिलकर उसके साथ लड़ना पड़ेगा। दहशतगर्द है ना, दहशतगर्द है ना। हमें तारीख से सबक सीखना होगा। यहाँ पे तो अंग्रेज के ये बताएं, यहाँ पे यूएसएसआर भी टूट गया था, यहाँ पे तो अमेरिकन कोलिशन फोर्सेस 40 मुल्कों की डॉलर लगा के भी मार खा के गई। हम अगर उनके साथ एंगेज करते हैं, धोखा दे रहे हो?
होता। हम मुसलमान हैं, हमारा वहां पे उधर अगर दहशतगर्द तंजीम मानते हो कि नहीं मानते हो? बातचीत से इंशाल्लाह इनको सेग्रीगेट कर पाकिस्तान सकते के हैं। हमले करने में मत क्यों इन्वॉल्व है कि नहीं ये बताएं, बाकी छोड़ दे। हम आपको मुसलमान समझते हैं और आप मुसलमान है। आप टीटीपी मुझे आपसे मुसलमानी का फतवा लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप ये वाला जवाब तो दे देना फिर उसामा साहब, टीटीपी की बात हो रही है। ये आपके फतवा ने तो यहाँ तक पहुंचा दिया है। आप इस्लाम के और पाकिस्तान के ठेकेदार बन के पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे हैं। आप सवाल क्यों इनसे पूछ के सवाल पूछ के ये इधर उधर जवाब न दे, ये सवाल पूछ के तब इनको छोड़ दे उसामा साहब, जवाब दे दें प्लीज। इस चीज का जी, टीटीपी दहशतगर्द तंजीम है या नहीं है पाकिस्तान में? जो दहशतगर्द तंजीम है वो आपके सामने करते हैं। जो दहशतगर्दी अफवाज और पाकिस्तानी कौम उनका मुकाबला कर रहे हैं, उनका माजी भी इस चीज का गवाह है कि उन्होंने हमेशा ये हरकतें की हैं। क्यों यार तुम जो सर आपने ये जो लगा दिया ना, ये जो क्या है? उनको इन लोगों को सेग्रीगेट करे, इनको अलग करे। अच्छा, इसमें से सेग्रीगेशन की बात करें। सेनेटर साहब आप प्लीज कंटिन्यू कर लें। सर तो नहीं आ रहे, सर कह रहे हैं कि आप सेग्रीगेट कर लें, जो कर रहे हैं उसको अलग कर दें, जो कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर लें। तो ये जो है ये क्या है सेनेटर साहब? क्या सवाल पूछा आपने? मैं कह रही हूँ कि उसामा साहब कह रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं, ये सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं टीटीपी के हवाले से, तो फिर तो ये पुरानी बात ही हो गई ना। फिर हमें बात करने पर मजबूर करते हैं, फिर कहते हैं कि हम ऐसी स्टेटमेंट देते हैं। आप बता दें अब क्या करना है। देखिए मैं आपको बताता चलूं, ये जो उसामा साहब कह रहे हैं कि मैंने जो सवाल किया और आपने जो सवाल किया, हमारा सवाल ये है कि अगर खैबर पुख्तनख्वा में हुकूमत पीटीआई की हुकूमत है, अगर वो समझते हैं कि हम जिम्मेदार है अवाम की 5 करोड़ अवाम की, अगर हम यहाँ से उनकी सेहत की, तालीम की, डेवलपमेंट सेक्टर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, यूनिवर्सिटीज की, कॉलेजेस की हम जिम्मेदार हैं, अगर हम सूबे से दहशतगर्दी के खात्मे की जिम्मेदार है और हम मरकजी हुकूमत के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ बैठकर इसके लिए हल निकालते हैं, मैं समझता हूँ ये है उनकी खिदमत, ये है सियासत। लेकिन जब यहाँ चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत से, मरकजी हुकूमत से सवाल करते हैं कि किस दहशतगर्दी की आप सबूत मांगते हैं तालिबान रजीम से, ये मुझे बताएं कि ये खैबर पुख्तनख्वा का चीफ मिनिस्टर है या तालिबान रजीम का नुमाइंदा है। हम ये सवाल करते हैं, आप ये चाहते हैं कि दहशतगर्दी हो? क्यों 80% बढ़ गई है दहशतगर्दी? क्या नेशनल एक्शन प्लान के बाद 2013 के बाद ये दहशतगर्दी क्यों बढ़ गई है? इसलिए कि ये इन लोगों को दहशतगर्द मानते नहीं है। आज भी ये चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि अफगानियों को मत निकालो, जो मेरी प्रॉपर्टी पे काबिज है, जो मेरे बिजनेस पे काबिज है, जो क्राइम में इन्वॉल्व है, जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, जो धमाकों में इन्वॉल्व है। आज भी खैबर पुख्तनख्वा के नाकाम चीफ मिनिस्टर सियासी नाबालिग अफगानियों को निकालने के हक में नहीं है। तो ये मुझे बताएं कि अगर मरकजी हुकूमत इन नमक हरामों को निकालते हैं, 46 साल कुर्बानी देने के बाद भी वो हमें गाली देते हैं, हमारे ऊपर बम बरसा रहे हैं, हमारे यहाँ पर खुदकश धमाके करते हैं, और 46 साल की कुर्बानी के बाद जब हमने उनको 1979 की रिवॉल्यूशन से लगाकर उनके खवातीन के सरों पे दुपट्टे डालकर उनको इज्जत दी, उनके एहतराम दिया, हमारे 46 साल सब कुछ तबाह बर्बाद करने के बाद भी यहाँ हमें गाली मिलती है, हमें बम मिलते हैं, हमारे ऊपर दहशतगर्दी होती है। मरकजी हुकूमत ने फैसला किया इनको निकाल दे, लेकिन यहाँ चीफ मिनिस्टर कह रहे कि मत निकालो। तो ये मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान का खैर खा है या तालिबान रजीम का नुमाइंदा है? इसका जवाब तो अब उसामा साहब दे दें, क्योंकि मेरे पास वक्त भी कम है। प्लीज 2 टोक जवाब दीजिएगा प्लीज उसामा साहब। ये पता नहीं ये किस तरह की सेनेटर साहब बातें कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हम कहते हैं टेररिस्ट को सिविलियन, ये जो उधर से अगर कोई हम हमारे जो उधर से सरहद पार से को आते हैं, हमें अपने दफा का इख्तियार है, हमें उन्हें एलिमिनेट करने का भी इख्तियार है। लेकिन अगर कोई इस तरह से हम उनको आबादियों के अंदर टारगेट करते हैं तो हमारी तो बेशुमार यहाँ पे अब पिछले कुछ माह में जो 3-4 ऐसी वारदातें हुई जिनके अंदर ड्रोन अटैक्स हुए, जिनके अंदर
उन लोगों को टारगेट किया गया, वहां पे बाद में पता चला कि इंतहाई बेचारे मासूम बच्चे और औरतें उनका निशाना बनी है। अच्छा। देखें, हमने मासिस को एतमाद में लेना है, हमने अवाम के लिए फायदे के लिए ये जो हमारे टेररिस्ट हैं इनको एंगेज करना है, इनको हमने फिनिश करना है, एलिमिनेट करना है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अवर नेशन। हमने अपने भाइयों का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है, अपनी जमीन का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। सेनेटर साहब, ये आपने बेहतर बात की है, लेकिन उसके लिए तो सर फिर आप बैठ जाए ना। लंबी ये देशियों का वक्त है, ये तो वही फुरूई इख्तिलाफात हैं जो जिसने हमारी उम्मत को तकसीम किया हुआ है। सीधी और सादी राय मैंने जो पहले आया मुबारक आपके सामने तलावत की, जो दो मुख्तसर थी, कद अफलाह मन तज़क्का, फला उसी ने पानी है जिसने तज़किया इख्तियार करना है। तज़किया क्या है? अपनी मैं को छोड़ने का नाम, अल्लाह की रस्सी को पकड़ने का नाम, गुनाह से खैर की तरफ आने का नाम, अमन का, आश्ती का पैगाम, जंग के बजाय सुलह का पैगाम, लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ जंग तकड़े होके अज़्म मुसम्मम के साथ। आप अगर देखें, ये पॉइंट स्कोरिंग का टाइम नहीं है, पॉइंट स्कोरिंग होती रहेगी। हमने जो इर्द गिर्द हमारे हालात बने हुए हैं, जिस तरह से ईरान के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, अल्टीमेटली वी आर द टारगेट। जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट जाके जिस अकॉर्ड के अंदर गई है गजा के मामले में या फलस्तीन के खिलाफ, हाई शर्मनाक बात है। जब यूरोप की मुल्क उसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो हम किस बोते पे हमने अपने मुसलमानों की पुश्त में छुरा खोपा है? कायदे आज़म का फरमान था, ये इसराइल उम्मत मुसलमान की कमर में खंजर है, सीने में खंजर है। इसके ऊपर फिर अलग से डिबेट स्टार्ट होगी, फिर सेनेटर साहब का भी मुझे इस पर जवाब लेना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त माजरत के साथ खत्म हो गया। उसामा हमजा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और इसके साथ साथ सेनेटर बहरामंद तंगी साहब मौजूद थे। दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। और उनका कहना यही था कि अगर ऑपरेशन करना है, उसामा साहब ये कह रहे थे, तो उसके साथ ही है कि सेफ्टी का भी बंदोबस्त करे और टारगेटेड कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और बिल्कुल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होने चाहिए, जिसके अंदर कोई गलती की गुंजाइश ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसके ऊपर बाद में हमें पछताना पड़े। लेकिन साथ ही साथ जो उनका सवाल था सेनेटर साहब का, वो भी बहुत वैलिड था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी पोजीशन कैटेगोरिकली यहाँ पर क्लियर करनी पड़ेगी कि वो इन दहशतगर्दों को, अफगानियों को, टीटीपी के लोगों को क्या समझते हैं, क्या स्टेटस है और किस तरह से वो इनको डील करना चाहते हैं। क्या उसके लिए आप कुर्बानी कर सकते हैं अपने फौजियों की, अपने शोहदा की, अपने लोगों की, अपने वतन की, या फिर कोई और बात है जिसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को डिस्कशन की ज़रूरत है विद द फेडरल गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर साहब। इसके साथ ही नाज़रीन, शो का वक्त खत्म हो, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।